Hello, dear students. Welcome to the next online video lecture series of your SYBSC Microbiology course MB221 Bacterial Genetics SEM 2nd. In the previous videos, we discussed about all the concepts that are included in this second year or SYBSC Microbiology course in the second SEM. So now we are going to start about the first unit, that is understanding the DNA. In this we will going to study about some of the evidences that proves nucleic acid as a genetic material, and many of the theories proposed by some of the scientists like Griffith, Avery MacLeod, Hershey and Chase, then Cornett and Singer, Gyrer and Scram. So all these experiments and their hypothesis or the theories we will going to discuss in this video lecture or in this particular unit. Also, we are going to study about types of nucleic acid, DNA and RNA, and also we will going to study about the structure of DNA, that is how the DNA get composed or what is the backbone of particularly deoxyribonucleic acid, what are the different types of bonds that are present in the DNA, and lastly we will going to see about different forms of DNA like A form, B form, Z form, and the varieties of the composition of particularly, or what are the differences between the A form, B form and the Z form, all the DNA forms. So let's start. Here you can see the 3D structure of deoxyribonucleic acid, and also आप यहाँ पे देख सकते हो कि DNA अगर बनता है तो फिर वो किस चीज़ों से या क्या कंपोनेंट्स मेनली उसमें प्रेजेंट्स होते हैं. जैसे 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं: शुगर फॉस्फेट बैकबोन, नाइट्रोजन बेसेस एंड actually nitrogen base, sugar and phosphate backbone. These are the particularly structure component that make up the particular DNA, and you all are aware about that DNA is a double helical structures in which one strand get 3 dash to 5 dash or 3 prime to 5 prime direction, and one strand get anti-parallel direction, that is 5 prime to 3 prime. जो स्ट्रैंड है वो रन होगा इन द फॉर्म ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड अनदर स्ट्रैंड इट विल गेट ऑपोजिटली रन लाइक 5 प्राइम टू 3 प्राइम. So next is experimental evidences for nucleic acid as a genetic material. Nucleic acid and that act as a genetic material, अगर ये हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीन, व्हाट एक्चुअली द जीन मीन्स. जीन मतलब क्या, ये आपको सबको पता है. अगर जीन ये वर्ड आता है सामने तर आपल्याला सगळ्यात पहिले आठवतं अनुवंशिकता, की हा सेम टू सेम त्याच्या आईवडिलांसारखा दिसतोय, त्याच्या वडिलांसारखी याची हाईट आहे, त्याच्या आईसारखं त्याचा हेअरचा टेक्स्चर आहे. तर हे कशामुळे आपण लगेच म्हणतो जीनमुळे. अरे हां, हे जीनमुळे आहे किंवा ही अनुवंशिकता आहे. मग ती अनुवंशिकता किंवा हेरिडिटरी किंवा इनहेरिटन्स ह्या सगळ्या गोष्टी कशामुळे आहेत, तर फक्त आहे जीनमुळे. ठीक है. अगर वही चीज़ हमें पढ़ना है तो जीन इट इज़ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर. जीन मीन्स व्हाट, इट इज़ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA. मीन्स व्हॉट, एक छोटासा फ्रॅगमेंट असेल या एक स्ट्रेच ऑफ DNA, अँड दॅट
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का सिंपल मीनिंग यही है कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में प्रेजेंट था दैट विल गोइंग टू ट्रांसफर into the baby offspring, or we can say that the character which is present in the first progeny that will going to transform from first progeny to the second progeny, from first generation to the second generation, from first parents to the baby or the offspring. और ओनली नॉट द इनहेरिटेंस मीन्स सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं होने वाली है, तो दैट इंफॉर्मेशन विल गोइंग टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर. इसे हम कहते हैं जीन. सो अभी न्यूक्लिक एसिड मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड? तो इसका एक हिस्टोरिकल अप्रोच जो है कि न्यूक्लिक एसिड, ये वर्ड या ये टर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसके पीछे किस साइंटिस्ट का योगदान था. तो वी विल सी दैट हिस्टोरिकल द हिस्टोरिक रिज्यूमे. फ्रेडरिच मिशर in 1869 he isolated the nuclein from the nuclei of pus cell. उन्होंने न्यूक्लिन नाम का जो कंपोनेंट था वो आइसोलेट किया. कहाँ से? न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई. किसका न्यूक्लियाई? पस सेल. अभी पस सेल मीन्स व्हाट यू ऑल नो. अगर आपको छोटा सा भी कुछ पेपर कट हो जाए या कुछ हो जाता है, लाइक देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वुंड, समटाइम्स इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पस. ठीक आहे. जर एखादी जखम झाली आपल्याला, जखम झाल्यानंतर काही लोकांची स्किन जी असते इट शोईंग द ॲलर्जिक रिस्पॉन्स आणि तिथं पस फॉर्मेशन व्हायला सुरुवात होते. अँड त्या पस फॉर्मेशनमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट रोल असतो बॅक्टेरियाचा. काही बॅक्टेरिया दॅट विल लीड टू फॉर्म द पस सेल ऑर द पस. मग फ्रेडरिच मिशर नावाचे जे सायंटिस्ट होते दॅट वर्कड ऑन दॅट पर्टिक्युलर पस सेल. त्याच्या न्यूक्लियामधनं, त्या पस सेलच्या न्यूक्लियामधनं त्यांनी न्यूक्लिन नावाचा सबस्टन्स आयसोलेट केला. आणि मग त्यांनी अजून थोडंसं रिसर्च केला. त्याच्यानंतर मग त्यांना कळलं की न्यूक्लिन वॉज शोन टू हॅव ॲसिडिक प्रॉपर्टीज, hence it become the nucleic acid. Means so the word nucleic acid is originated from the all this theory or all this particular concept, that is फ्रेडरिच मिशर. उन्होंने पस सेल को स्टडी किया, पस सेल का न्यूक्लिया, और उसमें से न्यूक्लिन आइसोलेट किया. फिर बाद में न्यूक्लिन कि कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ उन्होंने स्टडी किया और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड. अभी न्यूक्लिक एसिड जो होता है इट एक्चुअली मीन्स द पॉलीमर, और इट इज़ अ पॉलीमर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू. इट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियाई ऑफ सेल दैट इज वर्क फॉर द हेरिडेटरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और इसके अगर अपन एलिमेंटल कंपोजिशन देखें तो मेनली उसमें प्रेजेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लिक एसिड. Then next one is a types of nucleic acid. What are the types of nucleic acid? You all are aware about that. That is deoxyribonucleic acid. It is nothing but DNA. And ribonucleic acid like RNA. How the distribution of nucleic acids in the eukaryotic cell? तो DNA कहाँ पे प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल में, एंड RNA कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सो आप सबको पता है कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंड वैरायटी ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ER, लाइसोसोम, दैट ऑल आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल. और DNA जो है इट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस विद द स्मॉल अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. मतलब DNA इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियस अलॉन्ग विद द
माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स जो भी है उनके पास भी उनका खुद का डीएनए इट विल बी प्रेजेंट। आरएनए इज फाउंड थ्रू आउट द सेल, ठीक है। नाउ वी विल सी अबाउट न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, their building blocks are nucleotides. So nucleotides means what? न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। मतलब क्या, अगर न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करना है तो न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब किस चीज़ से बनता है तो वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो फिर न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स दे आर द एनर्जी रिच कंपाउंड्स दैट ड्राइव मेटाबॉलिक प्रोसेस इन सेल that also serve as the chemical signals, key links in the circular systems that respond to hormones and the external or the extracellular stimulus. They are the structural component of no number of enzymes, cofactor and the metabolic intermediates. हर एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से बनता है, फॉस्फेट, शुगर एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजन बेसेस. So here you can see that nucleotide structure, फॉस्फेट, शुगर अगर राइबोज होगा तो फिर वो हो जाएगा आरएनए, राइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लिक एसिड. अगर डीऑक्सी राइबो शुगर होगी तो उसे हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए, ठीक है. और बेस, नाइट्रोजन बेसेज जो है उसके 2 टाइप्स है फिर से, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स. अगर प्यूरिन्स होंगे तो फिर एडिनिन, गोनिन. पिरिमिडिन्स होंगे तो साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल. यूरासिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमिन, ठीक है. सो दिस इज पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर. ऑल्सो हियर you can see that what type of sugar present in the nucleotide or the nucleic acid. It is ribose and deoxyribose. राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज या डीएनए और आरएनए में इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो यही है कि सेकेंड नंबर का जो कार्बन है वहाँ पे हियर यू कैन सी दैट OH ग्रुप इज absent, that is instead of DNA it is present in ribose. ओके, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ऑक्सीजन OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इट इज़ absent इन द डीएनए, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन को निकाला गया है, तो हम उसे कहेंगे डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर जहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप आपका प्रेजेंट है, ठीक है. सो दिस इज़ द बिग डिफरेंस इन द DNA and RNA or the ribose and deoxyribose sugar. So here is the basic concept of nucleic acid, gene and how the nucleic acid act as a genetic material. We will see in the next lecture. Till then, go through the lecture. If you have any question, you can ask in the comment section or also in the WhatsApp group of SYBSC Microbiology. Till then, once again, read all the basic concept related to the nucleic acid, gene, DNA, RNA and so on. ठीक है, thank you. We will see the experiment in the next lecture.